Okay, so for you to be able to buy coins, you're gonna need to convert your country's fiat into one of these following coins here. But most people use USDT coins. The USDT is what we call a stable coin. It's the closest one to the US dollar. So if you want to trade $1 for $1, for example, USDT is your best alternative. Now, in order to buy crypto, all you need to do is click the Buy Crypto tab. You could buy with credit card in some countries, not all of them. But if you cannot buy with your credit card, most of the time you could do it through P2P trading. So P2P trading is bank transfers basically. So me personally, I'm in Canada, so I use the P2P trading. So once I click here, basically, I make sure that I'm in USDT. I select my country's currency. I enter the amount of money. So for example, I could want to buy $1,000 Canadian and convert it to USDTs. And the payment option in my case is Interact Transfer. It's basically a bank transfer. But again, this here goes with your country currency. So when you're going to select your country currency, whatever is available for you to use is going to be here. So in my case, as I said, I was using e-transfer. So here, for one USDT, I would need to pay $1.25 in this case. Now, just so you understand here, if I buy for $1,000 and the seller has over $1,000 available, then you're good to go. You can select that seller. But you'll notice here that the balance is lower. It's 404 USDTs is about $500 Canadian. So you wouldn't be able to buy USDTs from this guy in this case because he sold a lot of his inventory already. Okay, so you need to find somebody that has more than what you want to buy, obviously. So the second thing you want to check is the completion percentage. See, this guy doesn't complete his transaction most of the time, so that means that you're just wasting time. So you want to look for people that have above 90%. And in this case, for example, I said 1,000, so you want to make sure that they can cover your $1,000 Canadian in this case and convert it to USDT. So here, this guy made 120 orders and 100% completion. So he would be somebody that is trustworthy. So in this case, I would select this guy and go and buy my USDTs. It's as simple as that. Then you just need to follow the instructions that are here, depending on what selection of payment you want to work with. So buying crypto is as simple as that. Now, what makes it safe is that Binance is always going to be the intermediary between you and the person who sells you the USDTs. So this makes your transaction with them safe. You will never get scammed or lose money if you follow the proper instructions and do what I just showed you. Now again, the payment method could be different from one country to the other. The banks are different from one country to the other. But what you need to understand here is that every time you want to buy crypto, you make sure you first select your currency, then your method of payment, and obviously how much you want to buy in your own currency. And from there, you just need to follow the instructions. So it's as simple as that to buy crypto. And when you're going to have USDT, that's when you're going to be able to buy coins. And I'm going to show that to you in the next video. Please move on to the next part of the training. Now I just wanted to show you how easy it is to buy coins when you have USDTs. So all you need to do is go in Markets, then click Fiat Markets, select USDT, and from there you have your coins that you could buy. There's a ton of them. I think there's more than 400 of them that you could buy. Okay, so later during this training, I'm going to show you how to spot good opportunities. But for now, I just want to show you how easy it is to purchase some coins. So let's say, for example, I want to buy Bitcoin. I just need to click on this. It's going to open the price chart. And here, I can buy. Now, you can buy with a limit or you could buy at market price. Me personally, I always buy at market price. So let's say I would want to buy some Bitcoin right now. I just need to enter the amount of USDT I want to buy and then click buy Bitcoin.
And it's as simple as that. That's how you purchase coins once you have your USDTs. Please move on to the next part of the training. Although Binance is quite safe to store your coins, it's always preferable to remove your coins from the Binance exchange site and put them on a hardware ledger. So the one that I use is Ledger Nano X because this is not hosted on any website. It's basically a key that holds your information. So like that, nobody can hack you, right? So the one that I use is Nano X, but I also use Trezor. Now Trezor is a little bit more expensive. So if you want something reliable and that doesn't cost too much, I suggest you go with the Nano X Ledger. If you have the budget to buy Trezor, then buy the Trezor one. But what's important here is that you store your coins on a hardware ledger or hardware wallet, call it what you want. Like that, you're sure that nobody's going to be able to steal your coins from you. And I'm going to make you an example. Let's say you buy, I don't know, Ethereum for $2,000 or $4,000 whenever you buy it. And from that point, it skyrockets to $40,000. So your one coin would be worth $40,000. Now, it would be really a shame that you get that coin stolen for XYZ reason, right? So to play it safe, you always want to store your most valuable coins on a hardware ledger. Like that, nobody can steal them from you. Obviously, this is not something that's necessary. You could always leave your coins in Binance, but there's always a risk that Binance gets hacked one day, and it would be really a shame that you lose your coin over this. And especially, if ever there were to be a hack, it's going to be when coins are going to be at their highest, right? So to play it safe, I really recommend that you use a hardware ledger like Nano X or like Trezor. Please move on to the next part of the training. Now, once you've signed up to Binance, the most important thing of all, before you even start doing anything, is to confirm your personal verification and information. So you will be requested to go in identification. It will bring you to this page. From there, you will need to submit your basic information and get verified. And then you will be prompted to provide government identification and facial verification. Once you've completed those steps, you can move on to the next part of the training. I don't think that you need to withdraw $200,000 daily, so you don't need the advanced verification. All you need is the basic and the intermediate. Please move on to the next part of the training. So the first thing you should be doing when you open your Binance account, whether it's Binance US or Binance.com, is to go in security and do your settings. Now, the most important ones you need to take care of is the Google authentication. The Google authentication, you just need to go on your mobile phone in your app section and download the Google authentication tool. And then you just follow the instructions that are here. It's very simple to do. And then you want to do the same thing for your SMS authentication. So basically, you're going to have a code that goes to your Binance, to your phone. So this will add an extra layer of security. As for the email address, especially if you're going to be using money wires or electronic wires or bank transfers, call it what you want, I would suggest you use the same email that you use with your bank. And last but not least is the anti-phishing code. So this will add an extra layer of protection within your email messages. So every time that Binance will send you an email message, you will see your anti-phishing code on it. So this will allow you to identify that this is truly a Binance email and not some phishing fake email you're getting. So that adds another layer of security. So once you've added your Google authentication, your SMS authentication, and your anti-phishing code, and made sure that your email address matches your bank email, then you're ready to start buying crypto. Please move on to the next part of the training. भारत के कुल राज्यों पर 70 लाख करोड़ का कर्ज है। 1 लाख करोड़ का कर्ज नहीं, 2 लाख करोड़ का कर्ज नहीं, 10 लाख करोड़ का कर्ज नहीं, 70 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश पे 6 लाख करोड़ का कर्ज है, बिहार पे 3 लाख करोड़ का कर्ज है, बंगाल पे 4 लाख करोड़ का कर्ज है, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ का कर्ज, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ का कर्ज, आंध्रा तेलंगाना पे 3-3 लाख करोड़ का कर्ज,
पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्ज है, छोटा सा दिल्ली है इसके ऊपर भी 50,000 करोड़ का कर्ज है, कुल 70 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के पहले मुफ्तखोरी का कंपटीशन करती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम आपको मंगलसूत्र देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो चेन देंगे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो स्कूटी देंगे, चौथी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो कैश भी देंगे। सारे वादे कर रहे हैं, पैसा कहाँ है कुछ नहीं पता। अगर मेरे जेब में 100 रुपये नहीं है और मैं 500 रुपये का सामान खरीदने का वादा करूं तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो गलत करना पड़ेगा ना। इसीलिए इस मुफ्तखोरी को रोकने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। इस साल जनवरी 2022 में मैंने पीआईएल फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर माना और गंभीर मानते हुए इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। 6 महीने बीत चुके हैं, बल्कि 7 महीने बीत गए। 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, उसने अपना हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो ये जो मुफ्तखोरी इसको रोक नहीं सकते, हमारे पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जवाब नहीं आया। आज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास मुफ्तखोरी रोकने की पावर है। पॉलिटिकल पार्टियों को सिंबल इलेक्शन कमीशन देता है, तो ये सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति कुछ देता है उसके पास लेने की भी पावर होती है। इलेक्शन सिंबल पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन सिंबल इलेक्शन कमीशन देता है, इसलिए वो सिंबल वापस ले सकता है। किस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट की मान्यता मिलेगी, किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता मिलेगी, ये भी इलेक्शन कमीशन तय करता है। तो यानी जो पार्टियां मुफ्तखोरी को बढ़ा रही हैं उनकी जो मान्यता है वो भी इलेक्शन कमीशन रद्द कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों के सिंबल को भी इलेक्शन कमीशन सीज कर सकता है। लोगों के चुनाव लड़ने पे बैन भी कर सकता है। ये पावर है उसके पास, लेकिन वो अपनी पावर यूज़ नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार ये बात होती है कि मुफ्तखोरी ठीक नहीं है, लेकिन कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बनाया। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बालाजी केस में कहा था कि आप मुफ्तखोरी रोकने के लिए कानून बनाइए, कानून नहीं बना। इलेक्शन कमीशन को कहा था मुफ्तखोरी रोकने के लिए गाइडलाइन बनाओ, गाइडलाइन नहीं बनी। तो आज मैंने यही कहा कि अब ऐसे बात बनी नहीं बनेगी। पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करने, कैंडिडेट के चुनाव लड़ने पे रोक लगाने के लिए एक गाइडलाइन ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ज़रूरी है। दूसरा, इंडियन पिनल कोड में ब्राइबरी का कानून है, ब्राइबरी की एक धारा है, लेकिन इसको ब्राइबरी माना ही नहीं जाता। अरे भैया, इससे बड़ी ब्राइबरी क्या होगी? मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे आप वोट दोगे तो मैं आपको मंगलसूत्र दे दूंगा, आप मुझे वोट दोगे मैं आपको स्कूटी दूंगा, आप मुझे वोट दोगे मैं आपको फ्री पानी दूंगा, आप मुझे वोट दोगे मैं आपको फ्री की बिजली दूंगा। पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है, ये पैसा कहाँ से लाता है? क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने घर से पैसा लाती है? क्या कोई नेता अपने घर से पैसा लाता है? या पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे में से ये काम करती है? पैसा किसका? टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर से पूछा नहीं जाता। 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, उनसे एक बार नहीं पूछा जाता कि आपने जो टैक्स दिया इसको हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, फ्री की रेवड़ी बांटें कि नहीं बांटें, फ्री का मंगलसूत्र दें कि नहीं दें, कोई नहीं पूछता। पैसा टैक्स पेयर का मालिक बन के बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टियां, जो मन करते वादा कर देती हैं, और ये भी नहीं देख रहे हैं कि देश की कंडीशन क्या है। 70 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर हमने इसको नहीं रोका, यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट से कही आज कि अगर हमने मुफ्तखोरी को नहीं रोका, ये जो मुफ्त में रेवड़ी बांटी जा रही इसको नहीं रोका, भारत का हालत वही होगा जो श्रीलंका की आज हालत हो रखी है। श्रीलंका में भी मुफ्तखोरी पे लगाम नहीं लगाया गया। श्रीलंका में रेवड़ियाँ जो बांटी गई थी मुफ्त में, पॉलिटिकल पार्टियों ने बांटा, उसको नहीं रोका गया। आज श्रीलंका बेहाल है। 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 100 रुपये का एक लड्डू मिल रहा है वहाँ पे। ये सिचुएशन आ गई, इतनी महंगाई हो गई, पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है श्रीलंका, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। कोई श्रीलंका को उधार देने के लिए तैयार नहीं है। भारत भी जो उधार लेके रेवड़ी बांट रहा है, ये कब तक कौन उधार देगा? कब तक वर्ल्ड बैंक उधार देता रहेगा? कब तक अमेरिका उधार देता रहेगा? कब तक लोग बाहर से उधार देंगे?
लोगों ने लंका को उधार देना बंद कर दिया, लंका कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया लंका। यही हालत कुछ दिन भारत में होगी। भाई 70 लाख करोड़ का कर्जा है, चलो मान लो 10-20 लाख करोड़ और कर्जा मिल जाएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि लोग उधार देना बंद कर देंगे, उधार देना बंद कर देंगे, पूरा हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो वही हालत होगी जो लंका की हुई है। इसलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैंने यही निवेदन किया, ये बहुत गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत गंभीर मामला है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप बताइए ये मामला, आप इसको सीरियस मामला मानते हैं? इलेक्शन कमीशन ने बोला हाँ मामला बहुत सीरियस है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब मामला सीरियस है तो आप इस पर कुछ करते क्यों नहीं, फिर अपने हाथ क्यों खड़े कर रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट से पूछा, भाई ये मामला आप इसको सीरियस मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट ने भी बोला हाँ मामला बहुत सीरियस है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर मामला सीरियस है, 6 महीने हो गए, नोटिस जारी किए, आप जवाब क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो? मेरे मैटर के बाद कपिल सिब्बल साहब का मैटर था, कपिल सिब्बल साहब ये कोर्ट में बैठे हुए थे। चीफ जस्टिस ने सिब्बल साहब को उठाया, बोले हाँ भाई बताइए आप सिब्बल साहब, आप तो पार्लियामेंटेरियन है, ये मामला सीरियस है कि नहीं है? सिब्बल साहब बोले हाँ मामला बहुत सीरियस है। चीफ जस्टिस ने बोला अच्छा फिर आपकी क्या राय है? बोला जी फाइनेंस कमीशन की भी इसमें ओपिनियन होनी चाहिए। उन्होंने बोला फाइनेंस कमीशन भी इसको कुछ कर सकता है। तो अब 1 सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई होगी और इलेक्शन कमीशन को फिर से आके बताना है कि वो क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं इस मुफ्तखोरी को रोकने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि वो क्या क्या इस पर कानून बनाने वाले हैं मुफ्तखोरी को रोकने के लिए। अभी हमने ये भी मांग किया कि इसको लॉ कमीशन की भी ओपिनियन ले लिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, नीति आयोग, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सबकी ओपिनियन के बाद एक इस पर ढांचा आएगा। नहीं आया तो पंजाब में जो काम आम आदमी पार्टी ने किया, आपको पता है पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। टोटल पंजाब की पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है और 3 लाख करोड़ का कर्जा है। इसका मतलब पंजाब में रहने वाले जितने भी छोटा जो बच्चा है उसके ऊपर भी 1 लाख का कर्जा है। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 50,000 करोड़ का कर्जा है। अब खुद ही आप कल्पना कर लीजिए, कोई ऐसा दिल्ली का छोटा बच्चा भी नहीं जिसके ऊपर कर्जा नहीं। यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, 6 लाख करोड़ का कर्जा है। मध्य प्रदेश के ऊपर भी कर्जा। ऐसा भारत में कोई स्टेट नहीं जिसके ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का कर्जा नहीं है। ज़्यादातर राज्यों पे तो भाई हमारे देश में आप समझो ना 70 लाख करोड़ का कर्जा है। चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या यूपी हो या बिहार, आपका झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे राज्यों पे कर्जा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ये जनता को बता ही नहीं रही हैं। वो मुफ्त की रेवड़ी बांट रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं ये रेवड़ी जो हम आपको खिला रहे हैं ये हम उधार लेके खिला रहे हैं। भाई उधार लेके घी पीने से अच्छा, उधार लेके अच्छे कपड़े पहनने से अच्छा है भैया उधार मत लो, जितनी अपनी चादर उतना पैर फैलाओ। पैसा है नहीं, कभी वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं, कभी इनसे मांग रहे हैं, कभी उनसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से मांग रहे हैं, कभी जापान से मांग रहे हैं। सड़क बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, प्लेन बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, सब चीज के लिए बाहर से पैसा ले रहे हैं और यहां पे मुफ्तखोरी को बढ़ा भी रहे। चुनाव जीतना है, चुनाव जीत के क्या करना? भ्रष्टाचार करना। 70 लाख करोड़ का कर्जा है, 70 लाख करोड़ का बजट है। इस बजट का 20% हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में जा रहा है। आपने देखा होगा भी बंगाल में, बिहार में किस तरीके से, बंगाल के ऊपर भी 4 लाख करोड़ का कर्जा है और मंत्री 20-20 करोड़ अपनी महिला मित्रों को दे रहे। जिस राज्य के ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो, उस राज्य का एक मंत्री अपनी महिला मित्र को 20 करोड़ रुपए उसके घर में मिला है। अभी भगवान जाने टोटल कितना और पैसा होगा। 20 करोड़ तो कैश मिला है। अभी पता नहीं कितनी पेट्रोल पंप होगी, कितनी और उनके फैक्ट्रियां होंगी और क्या क्या उनके पास और प्रॉपर्टी में लगा होगा। हो सकता है कोई शॉपिंग मॉल भी हो सकता है प्लॉटें भी हो सकता है फ्लैट भी हो, भगवान जाने और क्या क्या होगा, वो तो जांच में पता चलेगा। तो इस देश के नेता, जो देश खुद बदहाल है, जो देश खुद इस समय फटेहाल है, जो देश खुद कर्ज में डूबा हुआ है, सारे राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन नेता सत्ता की खातिर लगातार मुफ्तखोरी बढ़ा रहे हैं। और सत्ता क्यों चाहिए? सेवा करने के लिए नहीं चाहिए, सत्ता चाहिए और लूटने के लिए। और ज़्यादा जो है, जो कर्ज लेके आ रहे हैं उसको भी और लूट कर अपने घर में रखने के लिए। सत्येंद्र जैन का आपने देखा दिल्ली में, ईमानदार, कट्टर ईमानदार, अभी तक जेल में बंद हैं, हवालात में चल रहे हैं। हवाला का धंधा करते थे, कट्टर ईमानदार थे, हवाला का धंधा कर रहे थे। अभी आपने दिल्ली का देखा शराब के ठेके में क्या क्या कहानी हुई है। सीबीआई जांच चल रही है, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि जो दलाली हुई इसमें किसने किसने लिया। तो जो कट्टर ईमानदार बता रहे वो भी लूट रहे, जो सेकुलर बता रहे वो भी लूट रहे, जो अपने आप को समाजवादी कह रहे वो भी लूट रहे। सत्ता मिल जाए बस,
उसके बाद देश जाए बर्बाद में। इसलिए मेरा ये मानना है, इस मुफ्तखोरी को बढ़ाने के लिए हम और आप जो कर सकते हैं, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। आप कम से कम इतना तो करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैग करके ट्वीट करिए, अपने सांसद और विधायक से पूछिए कि आपके